Please come here. तो जोरदार तालियों के लिए वो आठवीं देश से इस प्रोग्राम में आने के लिए। So are you excited for this program? Are you excited? Are you excited? Because nobody can mess up your hair. This was one such instance. So many of those who have told me, my hair still looks good. Listen, my Hindi is not that good. So I have asked these two gentlemen to help me with Hindi. Let me assure you, I started learning Hindi again. डॉक्टर साहब ने कहा इनकी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है और आपका अनुरोध था कि हिंदी में बोला जाए, इसलिए मैं आपके लिए इनकी बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए यहां पर हूं। I left India in 1975 and I went to US. 1975 में मैंने हिंदुस्तान छोड़ा और अमेरिका का रुख किया। My history is all on the website. You get into internet, you can see that. So I will not talk about what is already there, but I will talk to you about what we have accomplished. इनकी पूरी जानकारी वेबसाइट के ऊपर में दी हुई है, इसलिए उसके बारे में आप ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये और बहुत कुछ बोलेंगे जो उस वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है और आपकी जानकारी यहाँ के लिए आज बोलेंगे। We have seen companies in the direct sale business. We have seen a lot of companies come and go, a lot of companies still stay back. But some is new to you. But we are not new. I started this back in 1975. बहुत सारी कंपनी को आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते और जाते देखा होगा, लेकिन ये कंपनी चिरकाल तक रहने के लिए आई है, जिसकी शुरुआत ये 1988 में इन्होंने किया था। After my PhD in 1986, I decided to go into business. 88, we started the business in the US under the name Sabinsa Corporation. इन्होंने बिजनेस करने का सोचा और 1988 में बिजनेस का स्टार्ट किया अमेरिका से सबिंसा कॉर्पोरेशन के नाम से। Sabinsa is my wife's name. सबिंसा इनकी पत्नी का नाम है। 1991, I came to India, started a business under the name of Sami Labs. 1991 में ये भारत आए अमेरिका से और यहाँ पर भी बिजनेस स्टार्ट किया सामी लैबोरेटरीज के नाम से। Today, we are a fundamentally solid company. यह आज के डेट में ये पूर्ण रूप से एक सुदृढ़ कंपनी है। When I say a fundamentally solid company, it means the following. One, the real estate belongs to us. Number two, the building, the equipment, everything belongs to us, except the people. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो रियल एस्टेट सारी चीजें हैं जो कंपनी की अपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, ना ही किराए का है, और सारे मशीनरी इक्विपमेंट ये सब कंपनी के अपने हैं। In Europe, we have visited our facilities in Bangalore. पूरे लोग यहाँ पर फैसिलिटीज बैंगलोर का देखा है लोगों ने। Some of you have. I asked and I asked some of you to visit us at Bangalore. कुछ लोगों ने देखा है और चाहेंगे कि बहुत लोग और आकर के उसको देखें और समझने की कोशिश करें। We are also here in Hyderabad. हैदराबाद में भी हमारी फैसिलिटीज हैं। And I started in the US, then went to Japan, then went to Germany, South Africa, Australia, Vietnam, South Korea, name a place.
Material has taken his company there. अमेरिका से शुरू करके और ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुबई, कोरिया, साउथ अफ्रीका होते हुए बहुत सारे देशों में ये कंपनी अपना व्यवसाय फैला चुकी है। I am not saying I am very capable. My mother's blessings. ये नहीं कहते कि इतने कैपेबल है, लेकिन ये बिजनेस बताएगा। On top of that, my teachers' blessings. My teachers' blessings. डॉक्टर साहब अपने मदर की ब्लेसिंग की वजह से और उनके जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने इनको हर लेवल पे शिक्षा दिया, जहाँ जहाँ से उन्होंने सीखा, उनके ब्लेसिंग का नतीजा है उनके सक्सेस का। तो अपने सक्सेस का श्रेय अपनी माता को और अपनी टीचर्स को देते हैं। Getting into direct sale was a questionable one. But I have tried other marketing means. And I believe direct sale is the way to go. डायरेक्ट सेल्स में इनका पूरा विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि डायरेक्ट सेल्स ही आने वाले दिनों का भविष्य है। One of the things that is said about direct sale is people tell that it is easy money. It is not easy money. It is very hard work. People who are in direct sale business work at least 14 hours per day minimum. लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल्स में पैसा बहुत जल्दी आता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। यहाँ भी आप सब बैठे लोग 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं तो पैसा आता है। ये सही मेहनत का पैसा है। We are 3 years old. We expect we will be here another 300 years minimum. Generation after generation, we will be here. अभी तो की And I will tell you the most important reason why we should work with the seminars. Sami, direct. You see, I am what you call an NRI, non-resident Indian. Sometimes I call it non-required Indian. I am also an OCI, overseas citizen of India. That means I can be in this country, do whatever I wanted, except I cannot vote. That's okay. I'm willing to live with that limitation. Now, when I started the company in India, I made a declaration that I'm a US citizen, but I will not repatriate any money back to US. उनको पूर्ण रूप से इंडियन बिजनेस को ओन करने का फैसिलिटी नहीं देते थे। तो एक शर्त था कि आप यहाँ से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको वापस यूएस नहीं लेके जाएंगे। एंड डॉक्टर साहब भी वही चाहते थे, ही डिडंट वांट टू, वो यहाँ से पैसा कमा के या प्रॉफिट कमा के यूएस नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वहाँ से पैसा यहाँ लाना चाहते थे। We are not only, can you cut down that light there a little bit? That there. We are not only Sami Direct or Samitsa or Samilab. The group companies are organic aromatics. Smell is what we sell. Anything that smells. If we made an attar today or a perfume today, we make something for that one. हमारे काफी डिविजन्स हैं, जैसे सबिल्सा मार्केटिंग आम है, जो भी रिसर्च इंडिया में होता है और जो भी न्यूट्रिशनल रिसर्च यहाँ होता है उसका मार्केटिंग आम इंडिया के बाहर वो सबिल्सा है। वैसे ही हमारे यहाँ पे और भी कंपनी से जो अलग अलग वर्टिकल में काम करते हैं, जैसे ऑर्गेनिका एरोमेटिक्स एक कंपनी है, जो भी आपको खुशबू या जो भी आप टेस्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट में, उसके अंदर का जो भी साइंटिफिक मॉलिक्यूल है वो हम लोग बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, और वो कंपनी ऑर्गेनिका एरोमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। We are also clinical research group. We are also a software development group. So all the software that somebody
innovations, it's all made by us, the same group companies. So we are fundamentally a very solid company. I'm not asking you to trust us. I'm asking you to look at the strength of the company. हमारा It traced my journey that I started from India, went to US, and started the business from there. Now I will start semi-direct from India. We'll take it to Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Europe, and finally to America. डॉक्टर ने Well, my voice is very nice, but today my throat is on a strike path with me. Okay. So my voice comes a little bit rough. But trust me, I'm a very nice, very soft-spoken, and very sweet-talking guy. And my voice is also good. But all of us have days like that. I am really flattered, I'm really delighted, I'm very thankful to all of you who are coming here on a Sunday afternoon and greeting me. It's amazing. I don't know how to say thank you for the kindness, hospitality, I say, together we will do well. Together we will do well. As a team, we will do well. We will do extremely well. हम लोग साथ मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और जरूर ये देखा जा रहा है कि हम साथ मिलकर के बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छुएंगे। ओके गुड। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा, हमने कुछ 4 महीने पहले एक स्पेशल प्रमोशन रखा था फ्रामो कंपनी और उसमें बहुत सारे लोग ऑल इंडिया क्वालिफायर्स हुए थे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा फर्स्ट जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट अचीवर्स हैं, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। ऑल प्रोडक्ट्स अचीवर्स, जोरदार ताली इन लोगों के लिए।
our star cool Virgo Singapore. I request all the qualifiers स्टेज के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आशीष भाई जोरदार तालियां इन लोगों के लिए. जोरदार तालियां for the star cool Virgo Singapore आशीर्वाद. आप अपनी जगह पे बैठ जाइए. चलो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अचीवर्स ऑफ स्टार प्लस बिगो. थैंक यू सो मच. चलो चलो, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much. Please. I request सारे लोग बैठ जाइए. I request everybody please sit there. मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा डॉक्टर जी. बैठ जाइए सारे. इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अवर नेक्स्ट लेवल जो कि ब्रॉन्ज है और मैं फर्स्ट नाम अनाउंस करना चाह रहा हूँ मिस्टर एंड मिसेस बोबड़े द ब्रॉन्ज डायरेक्टर. नेक्स्ट जुगल किशोर पांडा. जुगल किशोर पांडा.
कितने लोगों को रिकॉग्निशन पसंद है? कितने लोगों को रिकॉग्निशन पसंद है? सब लोगों को। लेकिन आपको पता है इंसान को जिंदगी में सिर्फ 3 बार रिकॉग्निशन मिलता है। पता है आपको? किसी को पता है? तो उसको पता नहीं होता मुझे कौन मेरा लाड प्यार कर रहा है। सेकंड जो है जब उसका शादी होता है तब, और थर्ड जो है वो जब वो मर जाता है तब, राइट। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में जब भी आप कोई छोटी अचीवमेंट करेंगे आपका रिकॉग्निशन होता है। तो आपके लिए जोरदार तालियां और ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां। शुक्रिया जो आप लोगों ने मान सम्मान डॉक्टर साहब का और हम सभी लोगों का किया। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से पूरा नागपुर और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफी जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। हैदराबाद, ऑल ओवर दी कंट्री। यह पहली बार है कि मैं नागपुर में आया हूँ और सो इज डॉक्टर मजीद। और आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का जो रिसेप्शन सब देख के बार बार आने का एक वादा है। आप लोग यूं ही बुलाते रहिए, हम लोग आते रहेंगे। एक्चुअली कुछ सीरियस डिटेल्स, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये बिजनेस इज वेरी सीरियस, ये हमारे करियर से जुड़ा है, तो इसकी मालूमात या इसकी इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है कि क्यों हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और क्यों हम इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। पहला, बहुत से लोगों के लिए पहला करियर और बहुत से लोगों के लिए दूसरा करियर। मैं 2-3 सिनेरियोज के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले जो आपका अपना सामी डायरेक्ट, ये पहली कंपनी है जो 25 साल के रिसर्च और साइंटिफिक वर्क के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया है। इससे पहले कोई कंपनी नहीं है जो 25 साल रिसर्च में काम करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया है। तो इससे डायरेक्ट सेलिंग की मान्यता बढ़ती है। दूसरा, न्यूट्रास्यूटिकल रेंज में ऐसी कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है जिनके खुद के 80 पेटेंट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं वो सीरियसली न्यूट्रास्यूटिकल में 25 साल से काम कर रहा है, रिसर्च के माध्यम में, ना कि हिंदुस्तान बल्कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। तो इसके साथ जुड़ने का एक मौका हम लोगों के लिए खुशनसीबी है, आप लोगों के लिए खुशनसीबी है। तीसरा, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जो भी मल्टीनेशनल्स आए वो उसमें एक भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के डायरेक्टली जुड़ा था, वो किसी न किसी अमेरिकन, मलेशियन, चाइनीज, यूरोपियन के नीचे जुड़ा था। सामी डायरेक्ट एक इकलौती कंपनी होगी जिसको, जो कि आप लोगों को वो अवसर देगा जो दुनिया भर में आप जाके लोगों को जोड़ सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ट्रूली इंडियन मल्टीनेशनल। बहुत छोटे से समय में आप लोगों के हार्डवर्क, कमिटमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है टीम वर्क, टीम के बगैर कोई सक्सेस नहीं होता। और यही आज यहां पे दिखा था आप सब लोगों को देख के कि यहां टीम वर्क है। 3 साल के अंदर, ये हमारा तीसरा साल है, 3 साल के अंदर काफी बेंचमार्क आपकी कंपनी ने तोड़े हैं, स्थापित किए हैं। ये आप लोगों का कठिन परिश्रम, हमारे ऊपर विश्वास और आप लोगों का कमिटमेंट का रिजल्ट है। पिछले 1 साल में आपकी कंपनी 600% सेल्स में ग्रो की है।
अगर कस्टमर बेस या डिस्ट्रीब्यूटर बेस के बारे में बात करेंगे तो 700% आपकी कंपनी ने ग्रो किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस साल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में लिस्टेड रहेंगे हिंदुस्तान में, अगर आप लोग इसी तरीके से इस कंपनी को बढ़ाते रहेंगे। वाई डायरेक्ट सेलिंग, सेमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में डॉक्टर साहब ने और का जो यूएस या वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है वो है 160 बिलियन, 160 बिलियन यूएस डॉलर का। 160 बिलियन, 1 बिलियन होता है 6000 करोड़ आज की तारीख में, तो 160 इंटू 6000 करोड़ जोड़ लीजिए। यह है आज डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का साइज, जिसमें कि 100 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यूएस 30 बिलियन यूएस सेल्स करता है। 30 बिलियन मतलब 30 इंटू 6000, 30 बिजनेस यूएस अकेले करता है डायरेक्ट सेलिंग में। 2 मिलियन है, हमसे 1/4, हमारा 1/4 और 180,000 करोड़ का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। तो हिंदुस्तान में इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा जो है वो है जापान। जापान तकरीबन 25 बिलियन यूएस डॉलर करता है। 25 इंटू 6000 कितना हो गया? 150, 1,50,000 करोड़ का बिजनेस जापान करता है। बहुत छोटी कंपनी है, कंट्री है। तो हिंदुस्तान में मलेशिया महाराष्ट्र से छोटी कंट्री है, उसमें 75 लाख लोग मलेशिया में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। 25% आबादी की, 3 करोड़ की आबादी है, उसमें 75 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग अपना करियर चुने हैं, और वो तकरीबन 20,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। आप महाराष्ट्र की सिर्फ पॉपुलेशन देख लो, और उसमें अगर 10% या 20% का आप अनुमान लगा लो, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल बिजनेस साइज। और मलेशिया दुनिया में नंबर 11 है। चाइना जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत रिसेंटली आया है, वो नंबर 3 पे है। 16 से 17 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करता है, मतलब तकरीबन 96 से 1 लाख करोड़। चाइना में डायरेक्ट सेलिंग को पूर्ण रूप से अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। उसके बावजूद आज कुछ ही समय में नंबर 3 पोजीशन में चाइना आ चुका है, और चाइना बिजनेस के मामले में सतर्क रहता है। जहां कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखता है, यहां पे आपके जितने भी फेस्टिवल होते हैं, उसके अंदर आपके दिवाली, होली, ईद, इसके अंदर के सारी चीजें चाइना से आता है। तो दे आर वेरी अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता दी है, और वहां का बिजनेस बहुत ही कम समय में तकरीबन 1 लाख करोड़ का है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब इसको पूर्ण रूप से मान्यता मिल जाए, जब इंडिया में इसको पूर्ण रूप से मान्यता मिल जाए, तो इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या साइज होगा। ना कि आईटी, ना कि कोई और एफएमसीजी सेगमेंट, ना कि रिटेल या ना कि गोल्ड, ना कि रियल एस्टेट, बल्कि जिस ग्रोथ पे आने वाले समय में जो इंडस्ट्री ग्रो करेगा वो है डायरेक्ट सेलिंग। आंकड़े बिल्कुल साफ बता रहे हैं, और आज थोड़ी तकलीफ है इंडिया में, क्योंकि इसको अभी तक मान्यता नहीं दी गई है पूर्ण रूप से। अभी तक हमें कोई फ्रेमवर्क या डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। उस वजह से अच्छी कंपनियां भी आती हैं और कुछ गलत कंपनियां भी आती है।
उस वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नाम थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। बट आने वाले समय में इसमें गवर्नमेंट काफी काम चल रहे हैं उसमें, हालांकि इतना फास्ट ट्रैक नहीं चल रहा है जितना हम चाहते हैं, बट इसमें काफी काम चल रहा है और इसमें मान्यता आएगा, फ्रेमवर्क आएगा, रूल्स आएगा, रेगुलेशंस आएगा और ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। बट तब तक आप लोगों को एक लॉन्ग विजन, ना कि शॉर्ट विजन, लॉन्ग विजन के साथ आप कोई भी एक कोर्स करना चाहते हैं, जब आप इंजीनियरिंग या डिग्री या फिर एमबीबीएस या स्कूलिंग में भी आप 10, 12, 14 साल की स्कूलिंग के बाद आप पढ़ के निकलते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी ओवरनाइट सक्सेस की आप कभी भी ये नहीं करना चाहिए। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्लॉक बाय ब्लॉक, इसको बिल्ड करना है। छोटे समय में फ्लाई बाय नाइट कुछ नहीं होता सक्सेस। यू हैव टू वर्क विद ए टीम। और एक प्रॉवर्ब है, इफ यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड ए लिमिट देन यू हैव टू ग्रो पीपल। और ये बिजनेस है जिसमें आप यू ग्रो पीपल, यू एम्पावर पीपल, आप लोगों को स्किलिंग करते हैं, लोगों को ग्रूम करते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं और ये बिजनेस लोगों के द्वारा। एंड दैट्स व्हाई सैमी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सबिल्जा ग्रुप ऑफ कंपनीज का 100% कन्विक्शन के साथ हमारा फ्यूचर बिजनेस जो है डायरेक्ट सेल्स में ही होगा, फिनिश फॉर्मुलेशन, वो भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स में। तो जो भी हमने जो स्टैटिस्टिक्स देखा ग्लोबल लेवल पे, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दाखिला कराते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ नौकरी उसको मिलेगा, या कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम में जाएगा, इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच लेगा, या मेडिसिन में जाएगा तो कौन सा स्पेशलाइजेशन लेगा या लेगी। तो वी सिलेक्ट बेस्ड ऑन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। हम कोई भी कोर्स चुनते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। तो आज के आने वाले 5 साल 10 साल में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आप देख सकते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि अभी हमारा जो टर्नओवर है 6-7 हजार करोड़ से ऊपर नहीं है, जबकि जापान जैसी छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री का सिर्फ 1,50,000 करोड़ है। हम सिर्फ 5 से 6 हजार करोड़ के अंदर है। मैक्सिमम जो जेन्युइन कंपनी उनकी 6,000 करोड़। तो आने तो गैप आपको दिख रहा है तकरीबन 50 to 60,000 करोड़ का बिजनेस इज देयर इन नियर फ्यूचर। तो आप इसके पार्ट बनने वाले हैं। 50 से 60 हजार करोड़ की ग्रोथ कोई भी सेक्टर में अभी कोई इंडस्ट्री में नहीं दिख रहा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस इंडस्ट्री और इसमें आप लोगों को विद अ लार्जर विजन, विद अ लॉन्ग विजन आपको इसमें लगना है, बल्कि नई पीढ़ियों को भी इसके लिए डेवलप करके आने वाले समय में हो सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स और डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्सेस आए एमबीए के। इतनी 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री आने वाली है तो एमबीए ऑफर किए जाएंगे। एमबीए के करिकुलम में ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्सेस ऐड किया जाएगा। बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी है, वो आएगा, डोंट वरी। सामी जैसी कंपनी इस फील्ड में आए, यही एक उसका सबूत है कि आने वाले समय डायरेक्ट सेलिंग का है। तो बी फोकस्ड और वर्क ऑन लॉन्ग टर्म विजन। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। लॉन्ग टर्म विजन के साथ, टीम वर्क के साथ लोगों को डेवलप करते हुए, जिनको आपने इसमें इंट्रोड्यूस किया है उनको थामे रखिए, उनको ट्रेन करिए, उनको सपोर्ट करिए और टीम वर्क के साथ आगे बढ़िए। 2050 हमारे हर घर में हमारा सामी का एक ना एक प्रोडक्ट पहुंचेगा। पहले जब लोग टैबलेट या कैप्सूल खाते थे तो वो एक इलनेस का प्रतीक था। जो टैबलेट और कैप्सूल को इलनेस पिल कहा जाता है, आज वेलनेस पिल है। आज लोग टैबलेट्स या कैप्सूल या सप्लीमेंट्स इसलिए खाना चाहते हैं क्योंकि वो वेल या इन द स्टेट ऑफ वेलनेस दे वांट टू रिमेन। ये एक कॉन्सेप्ट बदल रहा है। हमारी जो डाइट
या हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारी डाइट जो है बदल चुकी है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। उस वजह से उसको कंटिन्यू करते 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 और जो डेफिशिएंसी है, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जो फाइबर की डेफिशिएंसी, जो विटामिन की डेफिशिएंसी, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी, ये हमारे जितने भी खाने पानी खा रहे हैं हम, उसके खाने से नहीं मिल रहा है। और लगातार हमारा जो गलत खाने के स्टाइल की वजह से हम बीमार गिरते हैं, एक दिन में नहीं। और तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता जब तक कोई क्लिनिकल इवैल्यूएशन या कोई क्लिनिकल रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता, तब तक मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर इरिवर्सिबल। तो आज तो हम बिलीव करते हैं मेडिकल इंटरवेंशन। जब बीमारी आ जाती है तो वी गो फॉर मेडिकल इंटरवेंशन, बट मेनी केसेस इट इज इरिवर्सिबल। तो आज के नीड या आज के समय में हमें मेडिकल इंटरवेंशन से पहले वी वांट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। हमारे तौर तरीके, जीने के तौर तरीके, खाने के तौर तरीके और ये सप्लीमेंट्स का इंटरवेंशन हमें चाहिए। एक सिंपल चीज, टॉक्सिन्स। हमारे पुराने जमाने में लोग टॉक्सिन्स डिटॉक्स नहीं करते थे या प्रोडक्ट टॉक्सिफाइड नहीं चाहिए था। क्यों? आज आप दिल्ली के सब्जी मंडी में जाओगे, जहां पे थोक में सब्जियां आती है, वहां पे आप भिंडी देखोगे तो जो डेफिनेशन में जो ग्रीन है उससे हरा है, क्योंकि सारी जो हरी सब्जियां हैं उसको केमिकल और कलर में डुबाया जाता है। वो हफ्ते के हफ्ते फ्रेश रहता है। आपके जितने सेब आते हैं, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सेब, ये कब वहां से पेड़ों से टूटे होंगे और ये कब वहां से चला होगा और कब ये आपके आजू बाजू के फ्रूट शॉप में आया होगा, उसके बावजूद ये सेब आपको देख के मुस्कुराते रहते हैं। और पुराने जमाने में नागपुर के भी ऑरेंज अगर 3 दिन रह गया तो श्रिंक हो जाता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था, सेब ऑक्सीडाइज होता था। आज नहीं, क्योंकि क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज ऑल केमिकली ट्रीटेड। दूध 5 साल पहले, 10 साल पहले जो आपके यहाँ डेयरी का दूध आता था, सुबह का दूध अगर शाम को अगर आप यूज करेंगे, चाय बनाएंगे, तो वो फट जाता था, खराब हो जाता चाहिए। एलिमिनेट ऑल दी वाइट। पानी पीजिए, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों को आप क्लब करेंगे जब आपके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के साथ, यू विल लिव हेल्दी। आज न्यूट्रिशन इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है, इसलिए नहीं कि एकदम से अवेयरनेस आ गया, बीमार लोग ज्यादा गिर रहे हैं तो वो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, उस वजह से न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। बट इसका सही ग्रोथ तब आएगा जब प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव केयर जागरूक हो जाएगा लोगों में। और ये आपको जागरूक करना है कि क्यों ये सप्लीमेंट आज जरूरी है। हमारे राशन में आप शक्कर कम कर दीजिए, तेल कम कर दीजिए, उतना कम ब्लॉकेज होगा। शक्कर सरकार भी फ्री में बांटती है, क्यों मालूम नहीं? दिवाली आ गई, ईद आ गया, 2 किलो और बढ़ा दिया, उतना और प्रॉब्लम। अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में मिठास लाइए, खाने में मिठास दिखा दीजिए। शुगर इज नॉट नीडेड। तो बेसिकली आप लोग शुगर कम करिए, ऑयल कम करिए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए और उसकी जगह एक एंटीऑक्सीडेंट लाइए। ब्रेकफास्ट में एक ओमेगा लाइए। तो एक प्रोडक्ट ये हर घर में पहुंचाना है और उसको कैसे बजट में मैंने एलिमिनेट विच इज नॉट नीडेड। जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए अपने डाइट में से, आपके लाइफस्टाइल में से। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, एक्सरसाइज, ये है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। तो आज मेडिकल इंटरवेंशन से पहले लाइफस्टाइल इंटरवेंशन और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ये बहुत जरूरी है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। अगर जैसे हम खाते आ रहे हैं प्रोटीन लेस डाइट, फाइबर लेस डाइट, हमें आगे चल के प्रॉब्लम आएगा। वी नीड बैलेंस डाइट। हमें जितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाइटामिन मिनरल्स चाहिए, वो हमें रोज चाहिए। और जो कंपनी इसको लेके आ रही है, आने वाले समय में लेबल बेस्ड न्यूट्रिशन नहीं चलेगा।
एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन चलेगा, एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन। जो भी कंपनियां लेबल पे प्रोडक्ट डाल के भेज रही है, आने वाले समय में यू हैव टू हैव साइंटिफिक रैशनल। तो आप उस कंपनी को चूज करना है लोगों को, उस कंपनी का प्रोडक्ट देना जिसमें साइंटिफिक एविडेंस है। और आपकी अपनी कंपनी इस 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्ट टू कंज्यूमर जा रहा है और आप लोग लेके जा रहे हैं। तो देयर आर इनफ रीजंस कि आज के दौर में ये प्रोडक्ट हमारे लिए अमूल्य है। हम कपड़े कम कर सकते हैं, हम घड़ी नहीं पहनने को भी हम अपने आजू बाजू से बोलचाल समय का वक्त लगा सकते हैं। बट न्यूट्रिशन को हम अपनी न्यूट्रिस्यूटिकल को हम अपनी लाइफस्टाइल से नहीं निकाल सकते। और हमारे रहने के जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। और टीम वर्क के साथ इस मिशन को आपको घर घर पहुंचाना है। ये कोई ज्वाइनिंग और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है। इसमें जो आज समाज में जिस प्रोडक्ट की जरूरत है उसको लोगों को पहुंचाने का, इसकी इंफॉर्मेशन को लोगों को पहुंचाने का बिजनेस है। और जिस शुरुआत से आप लोगों ने ये काम शुरू किया है, हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों को टाइम टू टाइम रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो सोसाइटी में नीडेड है। एंड आप लोगों को और आने वाले समय में काफी सारे ऐसे सिस्टम्स लेके आएंगे जिससे ये इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज्ड वे, स्टैंडर्डाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड वे में लोगों तक पहुंचे और इसके सही कारण लोगों तक पहुंचे। और वी हैव टू एम्पावर डायरेक्टली द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। तो इससे ज्यादा अभी और कहने के लिए बहुत कुछ है, बट एक वादा है कि मैं डॉक्टर साहब को भी और हम लोग फिर और बार बार आएंगे, आप लोगों के साथ काफी कुछ शेयरिंग करेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन, फाइबर सूप्स, काफी और भी प्रोडक्ट्स फॉर किड्स, काफी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं। आप लोग इसी तरीके से एकजुट होके, एक टीम होके काम करते रहिए। और ये बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं, लोगों को जो प्रोडक्ट्स आप लेके उसकी मालूमात दे रहे हैं। इट्स ए नोबल वर्क, इट्स ए नोबल मिशन। जिस तरीके से आप करते रहिए, हम लोगों का पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। ये पहली बार है कि मैं नागपुर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बार बार आना चाहूंगा आप लोगों के साथ और इसी तरह काम करते रहिए। May God bless you all, your family, with lot of happiness, good health and prosperity. Thank you. What a powerful message. Jordar Taali. Good. अब चलेगा। Thank you, Sami. Sami, 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 Sami. Thank you, everybody here. मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा, मैं देख के आया, हाथ में माइक आया, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने ऑनरेबल डॉक्टर मोहम्मद बगीर साहब को। उनके लिए बहुत बहुत तालियां। नागपुर शहर में वो पहली बार आए, पता नहीं इसके बाद वो कब आने वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे हमारे लिए वो कब आएंगे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट को हमको सेट करने में, मेरे लीडर्स ने जो मेरे को सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लीडर्स बहुत जबरदस्त है। मेरे जो अपलाइंस हैं, उनका गाइडेंस के नीचे मैं पहली बार में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जब काम करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम सब मेहनत करते हैं, हम काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, राइट? लेकिन जब हेल्थ अच्छी हो तब ना, तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए स्वामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट है हमारे पास। लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए और जानने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समझते कितने लोग हैं? समझते कितने लोग हैं? किसी ने खूब कहा है, मैं एक कोट करना चाहता हूं, जे ईरानी ने कहा है कि विजन, ऐसा हमारे सीईओ साहब ने कहा है, विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट द ड्रीम। ये सिर्फ सपना होता है,
अगर विजन और एक्शन नहीं हो तो सिर्फ सपना होता है, और एक्शन विदाउट विजन वो सब टाइम पास है। विजन और एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब ने 25 साल पहले जो विजन देखा था, उसी के तहत हम आज यहां पर हैं, उसी की वजह से हम यहां पर हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक्शन और विजन में अगर साथ में मिलाए जाए तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप में और पूरे देश में हर इंसान, हर एक, सबसे पहले तो अपने आप में और फैमिली में और फिर पूरे देश को हम आगे ले जा सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं एक्शन और विजन के साथ काम करने को? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेडीज को तो बुलाना चाहूंगा मिसेस प्रतिभा गेरे। प्रतिभा गेरे। नमस्कार, मी सौ प्रतिभा राजेश गिरी फ्रॉम भंडारा. धन्यवाद तर मला त्यांचे आभारी मानायचे आहे की ज्यांनी मला या स्टेजवर, इतक्या मोठ्या स्टेजवर बोलण्याची पहिल्यांदा संधी दिली. ते माझे ग्रेट लीडर सिनियर चिमोटेकर आणि मिर्झा सर, त्यांचे मी खूप आभारी आहे. मी ज्यावेळी आम्ही अपयशाने माझी छोटीशी कहाणी आहे. त्यावेळी अपयशाने फार खचून गेलो होतो, आम्ही निराश होतो, हताश होतो आणि आमच्या निराशेमध्ये पुढे असते. तर त्या आशेचा किरण आम्हाला चिमोटे सर आणि मिर्झा सरांनी साथ दिला आणि स्वामीबद्दल थोडंसं त्यांनी माहिती दिली. माझे मिस्टर माननीय राजेश गिरी यांनी व मी दोघांनी मिळून स्वामीचा बिझनेस करण्याचे ठरविले. दोघांनी मिळून त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मी पण बिझनेस करायला सुरुवात केली आणि हा बिझनेस आमच्या एवढी सुरुवात झाली बिझनेसला, वाटत पण नव्हतं की आम्ही खरंच आज स्वामी आहे म्हणून मी इथे आज उभी आहे, नाही तर स्वामी नसते तर मी इथे राहिली नसते. एक वेळ अशी होती आमची की आमच्या घरात खायला अन्न नव्हतं आणि आम्हाला खूप प्रॉब्लेम सुरू होते. पण ज्यावेळी चिमोटे सरांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, स्वामीचा बिझनेस सांगितला, त्यावेळी खरंच असं वाटलं की नाही, स्वामी म्हणजे ग्रेट, खूप ग्रेट आहे स्वामी. आणि जे मोहम्मद माझे डॉक्टर साहेब आहेत, त्यांचं तर भारतात जन्म घेऊन मला त्यांचा खूप अभिमान वाटतो की त्यांनी आपल्या भारतासारख्या देशात जन्म घेतला आणि त्याच्यात त्यांचा मला खूप गर्व वाटतो. प्रत्येकाने हा स्वामीचा बिझनेस करावा आणि मेन म्हणजे स्त्रियांनी, कारण स्त्रियांसाठी ते इतके महत्वपूर्ण आणि व्यवस्थित प्रोडक्ट आहे की जसं युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन वगैरे स्त्रियांना फार जास्त प्रमाणात होतो. समजा तो प्रोडक्ट तुम्ही यूज केला तर खरोखर खूप युजफुल आहे आणि महिलांनी कुठेच पुरुषांच्या मागे राहू नये, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे. स्त्रियांनी पुन्हा एकदा दाखवून द्या, स्पेशली मी स्त्रियांसाठी सांगते की स्त्री कुठेच मागे नाही आणि स्त्रियांनी पुन्हा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावं. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक महिला असते, त्या महिलांनी इथे बसल्या प्रत्येक महिलेने सिद्ध करून दाखवावे आणि एवढे बोलून माझे 2 शब्द सांगते. सो मेरा बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग से ही है. मैंने प्रीवियस में बहुत सारे मार्केटिंग किया था, मेहनत भी बहुत की, सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिला. मुझे डॉक्टर मोहम्मद माजिद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है. मेरे अपलाइड का शुक्रिया अदा करूँगा जो ग्लोबल फ्रीडम है, नेहर चिमोटे एंड रिजवान मिर्जा सर, मुझे आज इस स्टेज पे आने का मौका मिला है. और दूसरी बात, मैं पूरी फैमिली से बिलोंगिंग हूँ, फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ.